Hello, good morning to all. I am Dr. Kuldeep Bansod from Department of Pharmacy, Government Polytechnic, Jalgaon. Welcome you all in this personality development workshop arranged for the 3 days, specifically for the SC and ST students. Yes, good morning, sir. I also welcome to our I welcome to our Honorable Principal Dr. MP Ingle sir, who is joined this program with his busy schedule. Thank you, sir, for joining. Let me introduce first the objective of this program. Before that, I am thankful to the All India Council for Technical Education, New Delhi, for sanctioning our proposal for the Skill and Personality Development Center. I also thankful to the principal of Government Polytechnic Jalgaon for giving me permission to submit the proposal to the AICT. The broad objective of the SPDC Center is to provide opportunity to SCIST students in the institute to reorient themselves in the light of emerging employment opportunities in diploma students at all levels. It is to empower the SC and ST students by providing special skill trainings apart from regular study. To enhance the skills of SC and ST student with the help of such a type of the modules. So our principle says that let it not constrict toward only the SC and ST students. Make it open to all the students, so all the students will participate and take benefits from this program. We have a renowned speaker who is certified corporate and professional development trainer, Yogesh Viradia from the Surat, Gujarat. Let me have first brief introduction about him. He is graduated from the Varda Agnihotri Institute of Pharmacy. Then he completed his post-graduation in the business administration. He is the owner of Devarshi Practical Pathshala, and recently he got a best tutoring award for his Pathshala. He is working as a trainer since from 2015. So he has more than 5 years of experience in training the different peoples in the different organizations. He trained more than 5,000 plus students. So he is more aware about what students are thinking and what students actually need in this 21st century, where the skills to live ethically is much more increased than in previous days. As well as he trained more than 100 business persons. He gave the various business ideas how to uplift their business. He conducted more than 200 plus business development sessions. So today I also welcome Yogesh Viradia. I would like to request Yogesh Viradia to please start your session and share your ideas of today's lecture, that is personal mastery, and master our students. Yes, Yogesh, you can start your Yes. session. Okay. Thank you very much. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विवेक सर का, कुलदीप सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकूं। और मैंने पिछले 5 साल में स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको ऑब्जर्व किया है, और उस ऑब्जर्व के आधार पे मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे आईटी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे बीएससी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे ग्रेजुएशन है, कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, सबके साथ में मैंने कम्युनिकेशन किया। और जो मेजर इश्यूज उनकी लाइफ में आते थे उस इश्यू के आधार पे मैंने इस सेशन को डिलीवर करना चाहता हूँ।
सो प्रिंसिपल सर का और सब स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप को अटेंड करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये मेरे काम का है या नहीं काम का है। लेकिन हर चीज, लोग कहते हैं कि हर दिन अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तो ही हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते। यस सर, इंग्लिश सर रेज हैंड कर रहे हैं। English sir, you are co-host for the meeting, so you can unmute yourself, sir. Okay, so let's start our session about personality development. सर एक दूसरा आईडी है यस योगेश विरडिया करके, उसको आप होस्ट बनाइए, को होस्ट बना दीजिए उसको। ओके ओके Is done. ओके ओके सो फर्स्टली can you see this screen? Yes, sir. Okay. Hello, Yogesh. Wait a minute. I think our principal is online now. Now I request to English sir, please share your views on this SPDC program. Yes, sir. English sir, you can talk now. Okay, Yogesh, Okay. you can start. Sir will join afterwards. Okay. He Okay. he has some calls from the higher authority. Okay. Okay. Sure. So let's start. Okay. Okay. So, very good morning to one and all present over here. So, according to you,
आप किसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहोगे? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, किसी 3 आंसर मुझे चाहिए कि किसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। यस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, किसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। यस। सो फर्स्ट थिंग, आज मैं एक स्टोरी के साथ में आपके साथ में एक इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा कि पहली चीज, आप सब लोगों ने बहुत सारे, यस, योर पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड, ओके गुड। सो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में 2 सलून की शॉप होंगी तो एक चलती होंगी, एक नहीं चलती होंगी। 2 डॉक्टर्स होंगे तो एक के यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होंगे और एक के यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे। और एक जो ऑटो रिक्शा चालक है उसकी ऑटो रिक्शा हमेशा चलती ही रहती है, और एक जो होता है तो उसको पैसेंजर ही नहीं मिलते। एक किराने की शॉप है तो वो बहुत अच्छी चलती है और दूसरे के पास कोई कस्टमर ही नहीं होते हैं। तो सब लोग एक साथ में होने के बावजूद भी क्या फर्क आता है उनके पास? क्या रीजन होता है कि एक बहुत अच्छे से डेवलप कर पाता है अपना फ्यूचर और एक जो है वो अपना फ्यूचर अच्छे से नहीं डेवलप कर पाता है? तो क्या रीजन होता है उनका? तो उनका रीजन कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अटका हुआ रहता है। उनका एक जो रीजन होता है वो है उनकी पर्सनल मास्टरी होती है, उनकी पर्सनालिटी होती है, उनका एटीट्यूड होता है, उनका बिहेवियर होता है। तो जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है वो लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन पाए हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर निकलते हैं, स्कूल में से पास आउट होते हैं, कॉलेज में से पास आउट होते हैं, और एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ में एज ए जॉब ज्वाइन करते हो। लेकिन 5 साल के बाद क्या रिजल्ट आता है? 5 साल के बाद रिजल्ट आता है कि एक जो होता है वो मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लेवल पर पहुंच जाता है, और दूसरा जो होता है वो एक सिंपल एम्प्लॉई रहता है। क्या फर्क आता है? तो फर्क बस वही होता है, उनकी पर्सनालिटी का। तो आज हम इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? स्क्रीन सब लोगों को दिखाई दे रही है? Oh, yes, sir. जस्ट 1 मिनट। ओके। सो मैं यहां तक पहुंचा हूं तो बहुत सारे गुरुज, बहुत सारे ट्रेनर के पास से मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है, और वही नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे छोटे छोटे ग्लिम्स देख रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे कॉर्पोरेट में मैंने बहुत सारे बिजनेसमैनों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दी हुई है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये सब मेरे प्रोग्राम्स है। मैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम्स लेता हूं। ये मेरी कुछ क्लिप्स है जो न्यूज़पेपर में भी आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। सो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। सो आप सबने बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर दिए कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड राइट होना चाहिए, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस, सफलता के लिए सबसे जो बड़ा फैक्टर रहता है वो कौन सा रहता है? आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, एजुकेशनल ग्रेड्स, आईक्यू और पर्सनालिटी। Which factor is most important for success? You can write. IQ. Success के लिए IQ, okay. Next, all, yes.
3 options. Okay, all, IQ, all. Good. Very good. So आप सबने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उसके पास बहुत ही ज्यादा आईक्यू है, तो क्या वो सक्सेसफुल बन पाया है? नहीं। एक स्टूडेंट ऐसा है, उसके पास बहुत अच्छा एजुकेशनल ग्रेड है, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया होगा। और एक के पास बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया। मींस कि यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपके पास 3 फैक्टर्स होने चाहिए: एजुकेशनल ग्रेड्स, उसके साथ साथ में आईक्यू, और उसके साथ साथ में एक अच्छी पर्सनालिटी आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू आर यूनिक एंड स्पेशल। सी, आपके पास जो क्वालिटीज है वो किसी और के पास नहीं है। मेरे पास जो क्वालिटीज है वो किसी और के पास नहीं है, और आपके पास जो क्वालिटी है वो किसी और के पास नहीं है। तो हम कॉपी क्यों करते हैं कि हम इसके जैसा ड्रेसिंग सेंस बनाते हैं, इसकी जैसी हेयर स्टाइल बनाते हैं, इसका जैसा एटीट्यूड बनाते हैं। हम लगातार कॉपी कैट कर रहे हैं। मीन्स किसी ना किसी की हम कॉपी कर रहे हैं कि मैं उसके जैसा दिखना चाहिए, उसकी जैसी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, उसके जैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। हमारे पास एक यूनिकनेस है। इवन हमारे जैसी फिंगरप्रिंट भी इस दुनिया में किसी की नहीं है। तो हम क्यों लोगों की कॉपी कर रहे हैं? हमारे पास यूनिकनेस, हमको भगवान ने कुछ स्पेशल क्वालिटीज के साथ में भेजा है, तो वो क्वालिटीज को हमको पहचानना चाहिए और उसको इंप्रूव करना चाहिए। तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाते हैं। जो हमारे पास जो क्वालिटीज है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल थिंक हाउ यू लुक। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चंस रहता है कि पर्सनालिटी मींस कि अच्छा दिखना, लोग इंप्रेस हो जाने चाहिए, अच्छे से बात करते आना चाहिए, बस वही पर्सनालिटी है। नहीं, 80% ऑफ योर पर्सनालिटी इज हाउ यू थिंक। आपकी सोच किस लेवल की है? आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप बहुत सारे इंटरव्यूज फेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस काम को करने में डटे हुए हैं, तो आपके पास एक अच्छी पर्सनालिटी है। आप कभी हार मान के बैठते नहीं है, तो आपके पास एक अच्छी पर्सनालिटी। मींस आपकी पर्सनालिटी की शुरुआत होती है आपकी सोच से। आप कैसा सोचते हो, आप किस तरह का सोचते हो, किस क्वालिटी का सोचते हो, उसके ऊपर ही आपकी पर्सनालिटी डिपेंड रहती है। तो आज से एक जो धारणा सबके दिमाग में बंधी हुई है कि अच्छी पर्सनालिटी मींस कि अच्छा दिखना, बस अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छी 4 व्हीलर होनी चाहिए, अच्छा बंगलो होना चाहिए, बस वो पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी ये है कि हाउ यू थिंक, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। तो उस बात को हम कहते हैं पर्सनालिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट सेशन की शुरुआत करूंगा कि व्हाट इज पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी इज टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। आपका लोगों के साथ में बिहेवियर कैसा है। आप अपने टीचर्स के साथ में बात करते हो तो किस डिसिप्लिन के साथ में बात करते हो। आप अपनी कंपनी में मैनेजर के साथ में बात करते हो तो किस तरह का एटीट्यूड रख के आप बात करते हो। आप कॉलेज में अपने कलीग के साथ में बात करते हो तो कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। जॉब पे जाते हो, वहां पे आपके कलीग के साथ में, आपके बॉस के साथ में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। आप अपने घर परिवार के साथ में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। उस बात को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका ईगो। बहुत सारे लोगों को जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है। नहीं, एक अच्छी पर्सनालिटी किसे कहते हैं कि उसको किसी की तरह का हर्ट नहीं होता है। वॉट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो उसकी क्वालिटी होती है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छे के लिए हुआ है। कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। जो अच्छे एटीट्यूड वाले होते हैं उनको इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता है। नो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, इसलिए हमको यहाँ पे जॉब नहीं मिली है। उस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। इंटरेस्ट, सी, हमेशा आप ही लोगों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उससे बेटर ये है कि लोग आपके अंदर इंटरेस्ट ले। आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि लोग आपके साथ बात करने को तरसे, आपसे मिलने को तरसे कि नहीं यार। और आप जब उनसे मिलके अलग होते हो तो भी उसके दिमाग में एक अलग इंप्रेशन आपकी होनी चाहिए कि लोग आपके पास क्या ऐसा है कि आपको एक ही बात के ऊपर लोग लाइफ टाइम याद रखे।
तो आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटी, इनर क्वालिटीज है, सबके पास है, सिर्फ जरूरत है तो उसको पहचानने की, उसको देखने की, उसको ऑब्जर्व करने की। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका टास्क है यहाँ पे कि आपके पास क्या इनर क्वालिटीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। कोई भी 3 क्वालिटीज। जितने भी लोग बुक पेन लेके बैठे हैं, सबको बुक पेन लेके ही बैठना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर आप सुनोगे, आप जानोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे। लोगों के दिमाग में हर रोज हजारों आइडियाज आते हैं सक्सेसफुल बनने के, तो क्या वो सक्सेसफुल बन पाए हैं? नहीं बन पाए, क्योंकि 10% इज आइडिया। आपके आइडिया है ओनली 10% है, 90% है एग्जीक्यूशन। आप उसके ऊपर कितना एक्शन लेते हो वो आपको सफल बनाता है। आपका इमोशनल रिस्पॉन्सेस, लोग बहुत खुश हो रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं कि वो लोग इतने खुश क्यों हैं। तो लोगों के खुशी में आपको शामिल होना है और लोगों के दुख में भी आपको शामिल होना है। उसको कहते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेस। आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग यदि हैप्पी है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उनके साथ में डांस करें, उनके साथ सेलिब्रेट करें। और लोग यदि प्रॉब्लम में है तो वहां पे जाके भी हंसना नहीं है कि अच्छा हुआ प्रॉब्लम में फंस गया, उसी तरीके का था, उसके ही लायक था। नहीं, आप जिस तरह का कमांड ब्रह्मांड में देते हैं ना, वही एनर्जी आपके साथ होती है। आप यदि नेगेटिव सोचते रहते हो तो नेगेटिव आपके साथ होना ही है। किसी भी तरह की एनर्जी, जो जितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा उनको पता है कि ऊर्जा, जो एनर्जी है वो कभी नाश नहीं होती। वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में से तीसरे फॉर्म में जाती है। मीन्स कि ऊर्जा जो है वो कभी नाश नहीं होती। आप जैसा भी कमांड दूसरे के लिए यूज करोगे वैसा ही आपके साथ में होने वाला है। नेक्स्ट है सोशल रोल। सी, चिंपांजी जो बंदर होते हैं और हम इंसान, उनमें सिर्फ 2% का फर्क है। उनके पास भी शार्प दिमाग है, हमारे पास भी शार्प दिमाग है, लेकिन इंसान 2% उनसे आगे है। किस बात पे आगे है? तो उनको शब्द दिए हैं, उनको वोकल दिया है। हम बोल सकते हैं और वो लोग बोल नहीं सकते। हम अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम यदि अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं तो सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करें, सोसाइटी को भी हेल्पफुल हो सके, ऐसी हमारा नेचर होना चाहिए। और हम कॉलेज में क्या करते हैं? हम किसी को भी हेल्प नहीं करते। नहीं, जैसा आप दुनिया को दोगे दुनिया आपको रिटर्न वैसा ही देने वाली है। आप जितने लोगों को हेल्प करोगे, कभी आप मुसीबत में होंगे तो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। तो वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए। सोशल रोल, सिर्फ जो एनिमल होते हैं वो उनके बच्चों के लिए तो सब करते ही है, लेकिन इंसान वो होते हैं जो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा सोचे, दूसरों के लिए भी हेल्प कर सके। तो ये हमारा सोशल रोल होना चाहिए। तो इसको कहते हैं पर्सनालिटी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी कहां पे आती है? देखो, बीच में सर्कल है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी। मींस ये आप है, ये मैं हूं, ये सचिन तेंदुलकर है, ये विवेक ओबेरॉय है जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, विराट कोहली है। ओके, जितने भी स्टार है, जितने भी कॉमन पर्सन है, सब इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो ये जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहती है, सबकी, आपकी, मेरी, सबकी। पहला फैक्टर होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। मीन्स कि हमारे पापा और हमारे मम्मी के अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज होती है, वो कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर इनबिल्ड आती है। हमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ये उसके बाप के ऊपर गया है, इसकी आदत है, उसकी माँ जैसी है, उसके बाप के जैसा ही है ये। मीन्स कि लोगों ने उसके पापा की क्वालिटी भी ऑब्जर्व की है और वो लड़के की क्वालिटी भी ऑब्जर्व की है, इसलिए वो दोनों को मैच करते हैं और बाद में एक आइडिया देते हैं, एक डिसीजन देते हैं कि ये उसके बाप के ऊपर गया है, ये उसकी माँ के ऊपर गया। मीन्स कि कुछ ना कुछ जो क्वालिटीज होती है वो हमारे अंदर आती है। सेकंड फैक्टर जो है वो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, वो है फैमिली एंड सोशल ग्रुप फैक्टर। मीन्स कि हम छोटे होते हैं, वहां से बड़े होते हैं, तो हमारे घर परिवार में कैसा माहौल रहता है, हमारे आजू बाजू में किस तरह के लोग रहते हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पे हमारे कैसे फ्रेंड्स है, वो भी हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। हमारे घर में हर रोज झगड़े होते रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट भी उस तरीके से ही होता है। और हमारे घर में सब लोग एक दूसरे के साथ में वेल डिसिप्लिन बात करते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस बच्चे की पर्सनालिटी भी वैसी बनती है। तो आजू बाजू में हम कहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं, कहाँ पे हमारे रिलेटिव्स है, वो सब जो है वो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कल्चरल फैक्टर, मीन्स कि हमारी जो संस्कृति है वो हम सबको कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज देती है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वॉट है, कौन सी भी कम्युनिकेशन से आप आते हैं, कौन से भी कल्चर से आप आते हैं, कौन सी भी संस्कृति है, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताती है। जैसे हम बात करें भागवत गीता की, तो बहुत सारे रूल्स हमें भागवत गीता ने दिए हैं कि लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करो, लोग कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। मीन्स हर किसी को कल्चरल फैक्टर जो है वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो कुछ ना कुछ हमें जरूर सिखाती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है हमारी लाइफ में, जिसके ऊपर हमारी पर्सनालिटी डिपेंड होती है, वो है हमारा सिचुएशनल फैक्टर। हमारे साथ में, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे आदमी बिखर भी जाते हैं और वहां से आदमी निखर भी जाते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे सिचुएशनल फैक्टर का होता है। किसी किसी लोगों के साथ में बहुत बुरी घटनाएं हो जाती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अब ये जिंदगी हमारे कुछ काम की नहीं है, मैं तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता, मैं अभी इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता, मैं भगवान के पास जाना, वैसे वैसे थॉट उनको आने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, भगवान ने मुझे यदि परेशानियां दी है तो मैं इसके लायक हूं ना, इसलिए मुझे दी गई है, मैं उसको पार करके कुछ अच्छा डेवलप करूंगा। और एक अच्छा लीडर वो होता है, और एक अच्छा आदमी जो होता है वो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढे। जी, प्रॉब्लम हम सबके पास आते हैं, प्रॉब्लम्स हम सबके पास आते हैं, और भगवान जो है बिना प्रॉब्लम, बिना सॉल्यूशन का एक भी प्रॉब्लम नहीं भेजता है। लेकिन जरूरत होती है हमें उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की, कि हम वहां से कौन सा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और सॉल्यूशन मिलने के लिए एक दिन भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, और 10 साल भी लग सकता है। लेकिन आपको उसके ऊपर डटे रहना पड़ेगा, तभी आप अपने जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो ये 4 फैक्टर की बात की हमने। अब हम बात करेंगे गुड पर्सनालिटी के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला है गुड फिजिक, मीन्स कि आपकी एक अच्छा बॉडी शेप होना चाहिए। पहली चीज, हम लोगों को बात करते हैं कि ऐसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हमारा पेट जो है वो हमारे से आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। सेकंड है प्लीजिंग मैनर, मीन्स कि आपकी स्माइल, आपकी हंसने की पद्धति, आपकी हंसने का पैटर्न। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपके क्लासरूम में भी होंगे, आपके आजू बाजू में भी होंगे, उनको कहाँ पे कितना हंसना है, कितना स्माइल देना है, कब हंसना है, वो भी उनको नहीं पता है। तो ये आपकी अच्छी स्टाइल होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ में स्माइल भी करें तो किस तरह का स्माइल करना है वो आपको आना चाहिए। तो वो है एक अच्छी पर्सनालिटी। अपीयरेंस, आप कैसा दिखते हो, आपका देखने का नजरिया क्या है, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड बनाता है आपका अपीयरेंस, कि आप जैसे लोगों को ऑब्जर्व करते हो उस तरह का आपका अपीयरेंस बना दो। आप बहुत सारे बुरे लड़कों के साथ में रहते हो तो आप अपना अपीयरेंस कैसा बनाओगे कि उसके जैसा ही, फटे हुए पैंट पहनेंगे, कैसे भी फंकी हेयर स्टाइल बनाएंगे, ओके, टी शर्ट पहनेंगे, ये वो पहनेंगे, कुछ तरह का ड्रेसिंग सेंस नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं ना, वैसा अपीयरेंस हम अपना बना लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस। स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस मीन्स कि किसी को भी आप जॉब में जाओगे, यदि सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूंगा। पहला, कि एक बॉस है, वो उनके साथ में 2 एम्प्लॉयज है उनके अंडर में, उनको बहुत सारा ज्ञान देते हैं, एक को तब जाके वो थोड़ा बहुत समझ पाता है, और दूसरे को बहुत कम कहते हैं फिर भी वो पूरा समझ जाता है। तो जब प्रमोशन की बारी आएगी तो किसका प्रमोशन होगा, ए का या बी का? राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स। ए को बहुत ज्यादा समझाया जाता है तब जाके वो थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन बी को जब समझाया जाता है थोड़ा बहुत तो भी वो पूरा समझ जाता है कि उसको क्या करना है, कैसा करना है। जब प्रमोशन की बारी आएगी तो किसका प्रमोशन जल्दी होगा? बी। यस, बी का। गुड 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 गुड, वेरी गुड। सो वो कब होगा? जब आप अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर काम करोगे, अपनी स्मार्टनेस के ऊपर काम करोगे तब। उसके अलावा आपका प्रमोशन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि सर मैं 3 साल से यहाँ पे भी हूँ, मेरी सैलरी 15,000 है ना, तो आज 18,000 पे ही पहुंची है। और मेरा एक दोस्त था, वो 15,000 पे स्टार्ट हुआ और आज 25,000 तक पहुंच गया। मैं तो उससे ज्यादा काम करता हूँ, मैं तो उससे ज्यादा डिसिप्लिन में हूँ। नहीं दोस्तों,
बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है जो उसके अंदर होती है। बिना फालतू का कोई भी कंपनी किसी को प्रमोशन नहीं देती है, याद रखने का ये बात। उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी जिसके कारण ही वो लोग उनको प्रमोशन देते हैं। बिना फालतू के कंपनी किसी को भी प्रमोट नहीं करती है, ये बात ध्यान में रखने की। ट्रस्टवर्दीनेस बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है कि आपके जो लेक्चरर है, आपके जो बॉस है, आपके कंपनी के जो मैनेजर है, वो आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा कर सके, उनके कैबिन की चाबी आपको दे सके कि भाई ये लो चाबी, आप सवेरे 8 बजे आ जाना, ऑफिस खोल देना, ये काम है कर देना। आपके कभी लेक्चरर ने ऐसा बोला कि उनके लॉकर की चाबी आपको दी, उनके जो पर्सनल जो बॉक्सेस होते हैं उनकी कीज आपको दी? तो ऐसा ट्रस्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये आदमी जो है वो एकदम ट्रस्टवर्दी है, ये कभी किसी के साथ भी नहीं और मेरे साथ भी गलत नहीं करेगा। तो ऐसी ट्रस्टवर्दीनेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। दोस्तों, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो किसी को दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। एक इनिशिएटिव आपकी तरफ से होना चाहिए कि कौन ये काम कर सकता है, तो आपका रेज हैंड सबसे पहले होना चाहिए। यस, आई एम रेडी, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। आप किसी को दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो काम करेगा भी और नहीं भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यस, मैं ये काम करना चाहता हूं और मैं जितना भी श्योरिटी है, मेरे पास जितना भी टैलेंट है, उससे कई गुना बढ़कर ये काम करके आपको दिखाऊंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए रेडी हूं। ऐसी क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कितने सारे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने कॉलेज में भी, कंपनी में भी, कहीं पे भी, वॉट एवर प्रोजेक्ट्स में भी। यस लिखिए, जितने लोगों ने इनिशिएटिव लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, कोई है जिन्होंने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? यस यस, कृष्णा वेरी गुड, यस अंजलि, यस मंगेश, गुड गुड गुड, वेरी गुड, किरण, यस 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 यस, दिव्या, यस गुड गुड, वेरी गुड। तो आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे चल रहे हो। मीन्स लाइफ में वही सक्सेसफुल होगा वो जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा, वो चाहे अपने कंपनी की हो, अपने घर की हो, अपने परिवार की हो, अपनी सोसाइटी की हो। तो आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे उसमें आपका फायदा हो रहा है या तो भी, और फायदा नहीं हो रहा है तो भी। नेक्स्ट है पर्सनल इंटीग्रिटी, मीन्स की ईमानदारी। जी, आप जहां पे भी काम करो ना, 100% काम करो। करने के लिए कुछ भी काम मत करो। आज मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, तो मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्राई किया है आपके लिए कि मैं यहाँ पे 110% अपना एफर्ट्स दे सकूं और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। तो आप वॉट एवर काम करो, आपको कॉलेज में से प्रोजेक्ट मिला है तो उसको भी 100%। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पे से डाउनलोड कर लेते हैं, दूसरों से मार्केट बहुत सारे रेडीमेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कर लेते हैं। नहीं, आपको यदि लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो 100% ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी। तो ही आप कंपनी में भी जाओगे तो भी सक्सेसफुल बनोगे, आप एज ए लेक्चरर जाओगे, एज अ प्रोफेसर काम करोगे तो भी आप सक्सेसफुल बनोगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फ्रंट। सभी लोग गलती करते हैं ना, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यहां पे करते हैं प्रोफेशनल फ्रंट। मीन्स कि आप यदि डॉक्टर है तो आप डॉक्टर लगने चाहिए, यदि आप इंजीनियर है तो इंजीनियर लगने चाहिए, यदि आप फार्मासिस्ट हो तो आपके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि लोग दूर से भी आपको कहे कि ये फार्मासिस्ट है। क्या आपने ऐसी क्वालिटीज डेवलप की है आपके अंदर? राइट डाउन चैट बॉक्स यस, जिन लोगों ने ऐसी क्वालिटीज दी है। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि इसको किसने इंजीनियर बना दिया, लगता तो नहीं किसी एंगल से ये इंजीनियर है ऐसा। ओके, सो आपके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप अपना प्रोफेशनल फ्रंट अच्छे से डेवलप कर सको। नेक्स्ट है गुड कंट्रोल और बॉडी एंड माइंड। आपका पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी और माइंड पे होना चाहिए। शांत दिमाग होना चाहिए और स्टेबल बॉडी होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि रोज एक दो लोगों के साथ में झगड़ा होता है, रोज एक दो लोगों से चोट खाते आता है। नहीं, अच्छी पर्सनालिटी वो होता है
कि जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। सामने कितनी भी ऑपोजिशन है, सामने कितना भी टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, फिर भी वो अपने माइंड को काम एंड कूल कर सके, उसको कहते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। आपके पास एक मैनेजमेंट की भी स्किल होनी चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर वो टाइम मैनेजमेंट है, स्किल मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, वॉट एवर द मैनेजमेंट, तो आपको एक मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास में होनी चाहिए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स थे गुड पर्सनालिटी। यदि आप गुड पर्सनालिटी बनना चाहते हो तो आपके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे टिप्स दूंगा कि गुड पर्सनालिटी के लिए आपके पास दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। आपके पास एक अच्छा शरीर भी होना चाहिए और एक अच्छा दिमाग भी होना चाहिए। मान लो दो में से एक चीज है आपके पास, आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आपका आईक्यू भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन हर 5वें दिन आप कुछ ना कुछ बीमार होता है आपका शरीर। कभी सर दर्द हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, कभी पैरों में दर्द होने लगता है, कभी हाथ में दर्द होने लगता है, और हर 5वें या 6ठे दिन आप अपने बॉस से छुट्टी मांगते हो। नहीं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपको दोनों एरिया के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपकी पर्सनल मास्टरी होगी। आपके पास ओनली हेल्दी बॉडी है लेकिन माइंड नहीं है आपके पास। कभी साल में 2 साल में कभी आप बीमार नहीं पड़ते हो, लेकिन आपका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, किसी के साथ में झगड़ा कर देते हो। नहीं, आपके पास दोनों चीजें होंगी और दोनों चीजों के ऊपर आपको काम करना है, तभी आप पर्सनल मास्टरी में सक्सेसफुल बन पाओगे। हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन मीन्स कि वो मार्केट में डब्बे मिलते हैं वो नहीं खाना है आपको, लेकिन आपका खाना ही वैसा होना चाहिए। आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर वैसा होना चाहिए कि जिसमें से आपको न्यूट्रिशंस मिल सके। पर्सनल हाइजीन, आपका बॉडी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, आपके हेयर, आपके नेल सब कट क्लियर होने चाहिए। एक्सरसाइज, योगा आप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, एरोबिक्स करते हैं, वॉकिंग करने के लिए आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सब चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन सिर्फ योगा करें, सिर्फ जिम में जाए या फिर सिर्फ वॉकिंग करने के लिए जाए, तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हो, एक अच्छी हेल्दी बॉडी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है हेल्दी माइंड। आपको एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा माइंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री। 21वीं सदी में सबसे बड़ा डिसीज जो है वो है स्ट्रेस। उसके बाद में आते हैं HIV, उसके बाद में आते हैं कैंसर, उसके बाद में आते हैं बड़े बड़े डिसीज। एक सर्वे किया गया तो 95% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में अपनी लाइफ जीते हैं। आज यहाँ पे 88 लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रेस होगा। मे बी वो काम का स्ट्रेस होगा, मे बी वो परिवार का स्ट्रेस होगा, कोई भी, मे बी बिजनेस का स्ट्रेस होगा, मे बी जॉब का स्ट्रेस होगा, कोई ना कोई स्ट्रेस लेके आप बैठे होंगे। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, बी काम एंड कूल, हमेशा शांत रहना है। एक स्थिर और स्टेबल पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। कोई आपसे ये कह के नहीं जाना चाहिए कि ये लड़ाकू है, बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, किसी के साथ में भी झगड़ा कर देता है। नहीं, क्योंकि आजकल कंपनी में भी सब लोग जो जॉब पे जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को जो इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे नाम आता है कि दिस कॉलेज, तो वो लोग वहां पे कॉलेज पे फोन करते हैं, कॉलेज पे कॉल करके पूछते हैं कि ये स्टूडेंट कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। इवन आपके सोशल मीडिया से वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह की पर्सनालिटी से बिलोंग करते हो। उस तरह का लेवल एक कॉर्पोरेट कंपनी का हो चुका है, एक कंपनी का, एक इंडस्ट्री का हो चुका है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि मेरी कंपनी में एक भी ऐसा वैसा व्यक्ति आना नहीं चाहिए कि जिससे बाकी के लोग का डिस्टरबेंस हो, बाकी के लोग का एटमॉस्फेयर खराब हो। तो आजकल कंपनी भी इतनी शार्प हो गई है कि वो कोई भी कॉलेज से स्टूडेंट्स आता है, डायरेक्ट फ्रेशर है, तो उसकी कॉलेज में कॉल करते हैं, या फिर जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनकी पुरानी कंपनी में कॉल करते हैं कि भाई ये यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो किस तरह का एटीट्यूड रखता था। यदि कंपनी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, अच्छी कॉलेज अच्छा रिस्पॉन्स देती है,
तो ही वो लोग उनको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मेन नियम ये होता है कि वो काम तो करेगा ही, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोगों का जो डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए। डू मेडिटेशन। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? राइट, चैट बॉक्स में यस लिखिए, जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग, जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो चैट बॉक्स में यस 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 यस, गुड 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 गुड। ओके, गुड गुड गुड। तो आप भी लोगों से एक स्टेप आगे चल रहे हो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है सब अच्छे के लिए होता है। आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। आपके साथ में कुछ बुरा भी होता है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पे मेरा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो हर बात पे आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम गिनना स्टार्ट कर देते कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम आया है। हाथ में अगर अंगूठे में भी चोट आई रहती है ना, तो भी सबको दिखाते घूमते, मेरे अंगूठे में चोट आई, मेरे अंगूठे में चोट आई, मेरी उंगली में चोट आई, मेरा बहुत सर दर्द करता है। नहीं, छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में हजारों होंगी, लेकिन किसी के भी साथ में शेयर भी नहीं करनी है और उसका स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना है। बी फोकस एंड क्लियर। जितने भी लोग सक्सेसफुल बन पाए ना, उनका एक ही जगह पे फोकस था। विश्वनाथन आनंद, उनका फोकस कहां पे था? दुनिया की कोई भी बातों पे उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ वो चेस के 64 बॉक्सेस में था कि यहां से मेरी दुनिया शुरू हुई थी और यहीं से मुझे दुनिया पहचानेगी। तो मैंने जो पूरी ऊर्जा है, पूरा फोकस है, वो एक ही जगह पे डाला हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का तो एम ही क्लियर नहीं होता है, गोल ही क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का गोल ही क्लियर नहीं होता है। इसमें से यहाँ पे 82 90 लोग मुझे देख रहे हैं, उनको एक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको किस तरह की जॉब चाहिएगी, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि कोई भी, जहां पे मिले मैं करना चाहता हूँ। मार्केटिंग में मिले तो मार्केटिंग में कर लूंगा, एमआर की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मिलेगी तो वो कर लूंगा, क्लिनिकल रिसर्च में मिलेगी तो वो कर लूंगा, प्रोडक्शन में मिलेगा तो वो कर लूंगा, क्वालिटी एश्योरेंस में मिलेगा तो वो कर लूंगा, आर&डी में मिलेगा तो ये कर लूंगा। सब लोगों कोई भी गोल फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम एक नॉर्मल ही रह जाते हैं। हमारा एकदम क्लियर फोकस होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं बीफार्म के बाद, एमफार्म के बाद आर&डी में जाना चाहता हूं, तो पहले से ही आपको ऐसा वर्क करना है, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, कि मैं आर&डी में जाना चाहता हूं। उसके लिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते रहना चाहिए। आज तो सबके पास डेटा इतना अवेलेबल है, सब चीजें आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिल जाती है। तो आपका एक फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे और आपका माइंड जो है वो हेल्दी रहेगा। So what is personality development? Means personality development is improvement of behavioral trait such as communication skill, improvements of behavioral traits, professional front, interpersonal relationships, and attitude towards life and restoring our ethics. दोस्तों, आपके जो इथिक्स है वो आपके कंप्लीट इथिक्स होने चाहिए कि मैं ये रूल्स नहीं तोड़ूंगा, मतलब नहीं तोड़ूंगा। लॉ एंड इथिक्स आपने सबने पढ़ा होगा। सी, मेरी लाइफ में एक इथिक्स बना लिया है कि मैं कभी गलत लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मेरा लाइफ को देखने का नजरिया क्या है, मैं अगले 10 साल में कहां पे पहुंचना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है? कल किसने देखा है, पता नहीं 1 महीने बाद क्या होगा, पता नहीं 5 मिनट के बाद क्या होगा। अगर ऐसा सब लोग सोचते तो आज मुकेश अंबानी नहीं होते, विराट कोहली नहीं होते। मीन्स कि आपको क्या करना है, आपका जो एटीट्यूड है वो लाइफ के तरह अच्छा होना चाहिए। आपको जो भी पॉइंट्स अच्छा लगे, आपको लगे कि ये पॉइंट्स मेरे लिए काम का है, तो आप उसको मेंशन करते जाना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
सुनने से कुछ किसी की भी लाइफ नहीं चेंज हुई है। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करता है वही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। आपको डिसाइड ये करना है कि आपको ये 3 दिन आपके कॉलेज ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपके प्रोफेसर्स ने, आपके लेक्चर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो आपके लिए लिया है। 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आना चाहिए। मे बी आपकी कम्युनिकेशन में हो, मे बी आपके बिहेवियर में हो, मे बी आपके हेल्दी बॉडी में हो, मे बी आपकी हेल्दी माइंड में हो। तभी ये जो 3 दिन है ना, वो आपने इन्वेस्ट किए है ना, वेस्टा गिनने में आएगा। नहीं तो क्या होगा, ये 3 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा यदि आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनना चाहते हो। पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखनी पड़ेगी, आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर जो है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपका एंगर मैनेजमेंट है, कब गुस्सा होना है कब नहीं होना है, उसको भी ऊपर आपको ऊपर फोकस होना चाहिए। फूड हैबिट, आपकी खाने की हैबिट कैसी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, आप किस तरह से फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड्स मेकिंग स्किल। देन लर्निंग स्किल। दोस्तों, लाइफ में इतने लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं जो रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज मैं इस लेवल पे हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बहुत सारे कंपनीज में ट्रेनिंग दी है, फिर भी आज मैं हर रोज 1 घंटा बुक रीड करता हूँ और 1 घंटा कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखता हूँ, और हर महीने कोई ना कोई कोर्स होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कम्युनिकेशन मास्टरी के ऊपर, डिजिटल के ऊपर। तो वो सब जो होता है वो फीस पेड करके मैं उस कोर्स को अटेंड करता हूँ, तब जाके मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकता हूँ। रिलेशनशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड डीलिंग विथ प्रॉब्लम। मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग बन पाते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करते हैं। व्हाट टू डू, आपको यदि अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। रीड अ लॉट अबाउट इट। आप बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें आती है, तो उसको आपको रीड करना पड़ेगा। व्हाट सक्सेसफुल पर्सन, जितने भी बिजनेस पर्सनालिटी है, जितने भी कॉलेज के लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनके पास क्या था और वो कहां तक पहुंच गए। रोहित शर्मा की एक केस स्टडीज मैंने पढ़ी थी कि जब वो स्कूल में थे उनके पास बैट लेने के भी पैसे नहीं थे, उनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना था, वो भी उनके पास नहीं था। उनके प्रिंसिपल ने, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने वो फीस पेड की, और आज वो रोहित शर्मा कहां तक पहुंच गए। मीन्स कि सक्सेसफुल पर्सनालिटी को ऑब्जर्व आपको करना है। बहुत सारे क्लासेस होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस होते हैं। मेरी भी एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, योगेश विरड़ी। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ बातें ऑब्जर्व की है और वो बातें मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। थिंग्स टू एनहांस योर पर्सनालिटीज। डोंट कंपेयर योर लाइफ। आपको आपकी लाइफ किसी के भी साथ में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक के पास, इंडिविजुअल के पास में एक अलग क्वालिटीज होती है। और ये कंपैरिजन की शुरुआत कहां से होती है, हमारे घर से ही होती है। हमारे माँ बाप जो है हमारी कंपैरिजन बाकी दूसरे जो लड़के होते हैं उनके साथ में करते हैं, वही मेंटालिटी के साथ हम बड़े होते हैं और हमारे बच्चों की कंपैरिजन हम दूसरे और लोगों के साथ में करते हैं। उसका बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके बच्चे की सैलरी कितनी हो गई है, डिप्रेस करने का ये है। तो आपके पास एक यदि अच्छी पर्सनालिटी है तो आपको आपके किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है। डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स और थिंग्स कैन नॉट कंट्रोल यू। बहुत सारे लोगों के पास में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ में आपको लड़ना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी आपकी लाइफ में कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको चिंतित नहीं होना है। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी ऑन गॉसिप। दोस्तों, आप जितनी भी एनर्जी गॉसिप पे बिताते हो, वेस्ट करते हो, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। 2 एग्जांपल लूंगा मैं। एक मजदूर है, उसको कहेंगे कि ये ईंटें है, उसको ये जगह से लेके दूसरी जगह पे डालना है सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। और एक आदमी को बोलने के लिए कहा जाता है कि सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको कंटिन्यूअसली बोलना है।
किसकी एनर्जी डाउन होगी, ए या बी की? ए मजदूर है, उसको सवेरे 9 से 6 बजे तक काम करने के लिए कहा जाता है, और दूसरा जो होता है बी, उसको सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बोलने के लिए कहा जाता है। तो किसकी एनर्जी लो होगी, ए और बी? ए की, दोनों की, ए की, ए की, बी की, बी 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 ए, ओके गुड। सबसे ज्यादा एनर्जी डाउन होगी बी की, क्योंकि बोलने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो आपको, आपके पास जो भी एनर्जी है उसको आपको गॉसिप पे नहीं बिताना है, आपको जो एनर्जी है वो स्टोर करके रखनी। इसलिए लोग मेडिटेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ड्रीम मोर व्हाइल यू आर अवेक। आप जब जागते हो ना, तभी आपको सपने देखने, आपको सोते सोते आपको सपने नहीं देखने, क्योंकि सपने वो होते हैं जो आपको दिन में विजुअलाइज कर सको कि आज मैं इस चेयर पर बैठा हुआ हूं और 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहां पे देख रहा हूं, मैं अपने आप को कहां पे देखना चाहता हूं। तो वो होता है एक अच्छी पर्सनालिटी का साइन, कि वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते, नेगेटिव लोगों की तरह नहीं कि कल किसने देखा है, 5 साल के बाद क्या होगा, दुनिया तबाह होने वाली है, कोरोना आया है, अभी दूसरा वायरस भी आया है, काम करके क्या मिलेगा, विजन देख के क्या मिलेगा, नहीं, वो सब नेगेटिव चीजें हैं। आपको यदि अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो आपका पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल थिंकिंग इन हैंडलिंग पीपल। सी, आप बहुत सारी कंपनीज में जाओगे, इन फ्यूचर आप कॉलेज में भी जाओगे, तो आपके पास एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए हैंडलिंग स्किल, पीपल हैंडलिंग स्किल आपके पास में होनी चाहिए। तो बहुत सारी हैंडलिंग स्किल है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चीजें मेंशन की हुई है। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। सी, किसी की भी निंदा मत करो। आपके साथ में कोई कलीग है, आपके साथ में कोई एम्प्लॉय है, उसकी बुरी बातें आपको पता चलती है, तो आपको उसको उसको ही बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारा दोस्त होता है ना, उसके साथ में बात करते हैं कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। नहीं, ऐसी हमारी बिल्कुल भी आदतें नहीं होनी चाहिए। हमको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एरर्स है उस आदमी के साथ में, तो डायरेक्टली उसको ही बोलना चाहिए, ना कि दूसरे, तीसरे और चौथे आदमी को। नेक्स्ट है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सी, आज से आप एक टास्क सिलेक्ट करो, जिसको भी मिलते हो ना, उसके कोई ना कोई एक अच्छी बात उसके अंदर से ऑब्जर्व करो, उनको एप्रिसिएशन दो कि सर बहुत अच्छी टाई पहनी है, वेरी गुड, लुकिंग स्मार्ट, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, आज शर्ट आपने बहुत अच्छा पहना, आपकी ड्रेसिंग सेंस आज बहुत अच्छी है। अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, और जो एप्रिशिएशन होता है वो अच्छा होना चाहिए, मजाक किसी के भी साथ में नहीं करना है। ओके, तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इनहांस करेगी। ओके, वेज टू मेक पीपल लाइक यू। लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? आपने, आपके भी सपने होंगे कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी बातों को सुने, लेकिन क्यों सुनेंगे आपकी बात? आपके पास भी ऐसी क्वालिटीज। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। देखो दोस्तों, मैंने एक बात आपके साथ में पहले भी शेयर की थी, अभी भी शेयर करता हूं, कि जो चीजें आप लोगों को देते हो, लोग रिटर्न में आपको वही देते हैं। दुनिया का यूनिवर्सल सिद्धांत है कि जैसा आप दुनिया को देते हो, दुनिया आपको रिटर्न वैसा ही देगी। दुनिया के आप अच्छी अच्छी बातें दोगे तो दुनिया आपको अच्छी बातें देगी, दुनिया के बारे में आप बुरा बोलोगे तो लोग आपके बारे में बुरा बोलोगे। ओके, सो बिकमली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोग जब बातें करते हैं तब उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, बीच बीच में उनके बोलना नहीं है। उनकी बातें जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको एक भी बात नहीं बोलनी। हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी ने बात करना स्टार्ट किया ना, तो हम बीच बीच में हमारी बात डाल देते हैं, कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं ना, वहां से उनकी बात हम स्टॉप करवा देते हैं और हमारी बात स्टार्ट कर देते। नहीं, पहले उनकी बातें कंप्लीट करवा देनी है, उसके बाद में ही आपको बोलना है। स्माइल, एक अच्छी स्माइल आपके पास होनी चाहिए। बी अ गुड लिसनर। दोस्तों, लाइफ में वही लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं जो अच्छे लिसनर है, ना कि अच्छे बोलने वाले हैं। जी, मैं आज आपके सामने बैठा हूं तो मैंने भी बहुत सारा सुना है, बहुत सारे लोगों को सुना है, अच्छी अच्छी डायनामिक पर्सनालिटी को सुना है, तब जाके मैं आज आपके साथ में नॉलेज शेयर कर पा रहा हूं। इनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। लोगों को इनकरेज करें कि लोग उनके बारे में बोल सके, ज्यादा से ज्यादा बोल सके।
दोस्तों एक टेक्निक है कि लोगों, आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को सुने, तो पहले आपको लोगों की बात को सुनना है और उनकी बातों को ऑब्जर्व करना है, उनके बातों में इंटरेस्ट लेना है, उनको इंकरेज करना है। एक बार वो पूरा खाली हो गया, उसके बाद में वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। जब तक उसके अंदर बातें भरी पड़ी हुई है वो, तब तक आपकी बातें वो नहीं सुनेगा। सेल्स में हम बहुत सारे लोगों को ये सिखाते हैं कि आप कुछ भी सेल्स करने के लिए जाओ तो सामने वाले आदमी की जो भी डिमांड है ना वो पहले सुन लो, उसके बाद में आप अपनी बात, अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करो, तो लोग इजीली कन्विंस हो जाएंगे। तो ये बातें होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कि आपको अच्छी बातें, लोगों को इंकरेज करना है कि वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोले। कीप अ स्मार्ट हेड एंड कीप कूल। आपका दिमाग जो एकदम शांत होना चाहिए। डोंट शाउट और एग्रेसिव। हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत चिल्लाने लगते हैं, तो लोग, आजू बाजू के लोग आते हैं देखने के लिए, हम फोन पे भी बात करते हैं ना तो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। ओके, तो ऐसा कभी बात नहीं करना। एक अपना और आवाज में एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट, डोंट डाउट योर सेल्फ। सी, हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाए, उनका एक ही रीजन है कि हम खुद के ऊपर डाउट करते हैं। मैं R&D में जाऊंगा तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? मैं मार्केटिंग में जाऊंगा तो क्या मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा? मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा तो क्या मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा? मैं मेडिकल स्टोर स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं दवाएं बेच पाऊंगा? दोस्तों, कभी आप अपने ऊपर डाउट मत करो। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका रीजन ये है कि वो दूसरे के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं रहता है, खुद के ऊपर भी उनका ट्रस्ट नहीं होता है। जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट है, बी एग्जीक्यूटिव इन ड्रेस। आपका एक ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड्स में एक आपका इंप्रेशन बनता है। उसके बाद में कभी भी उसके दिमाग में आपका नाम आता है तो वो ड्रेसिंग सेंस वाला चेहरा ही उसको दिखता है। क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल। आपकी खुद की एक पर्सनल स्टाइल बनाओ, किसी की भी कॉपी मत करो। डोंट कॉपी एनीवन। मैंने बोला बहुत सारे लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं, ड्रेसिंग सेंस में, हेयर स्टाइल में। ओके, तो किसी भी कॉपी आपको नहीं करनी है, और आपको जो खुद लगता है कि मैं ये मेरी इनर क्वालिटीज है, तो उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है और उसको ही शो ऑफ करना है। यहाँ पे एक थॉट के साथ में इस पूरा सेशन को मैं कंक्लूड करूंगा। ब्यूटी गेट्स अटेंशन, पर्सनालिटी गेट्स द हार्ट। सी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सुंदरता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ध्यान ही अपने तरफ खींच सकते हो, लेकिन आपके पास एक अच्छी पर्सनालिटी है तो आप लोगों के दिल जीत सकते हो। ओके, आपको अब ये फोकस करना है कि आप, मुझे किस चीज के ऊपर फोकस करना है, ब्यूटी के ऊपर या फिर पर्सनालिटी के ऊपर। आपकी चॉइस है। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहते हो तो आपको ब्यूटी के ऊपर फोकस करना है, और यदि आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। एंड पर्सनालिटी बिगिंस वेयर कंपैरिजन एंड्स। पर्सनालिटी की शुरुआत कहां पे होती है? जहां पे कंपैरिजन एंड होता है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी अच्छी पर्सनालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल मास्टरी बनाना चाहते हो तो आपको किसी के भी साथ में कंपैरिजन नहीं करना है। अंडरस्टैंड? हियर इज कंक्लूड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पर्सनल मास्टरी। मैंने आपको साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर की कि जिससे हम कुछ ना कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सब बातें जो होती है वो हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करें, लोगों के साथ में कैसा बिहेवियर करें, हमारी पर्सनालिटी हम कैसे रखें। तो ये सब बातें होती है एक अच्छी पर्सनालिटी की। तो इज देयर एनी क्वेश्चंस? हमने लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है। आज जितने भी क्वेश्चंस आपको लगे हुए हैं कि मैं ये क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, तो हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट सेशन में, तीसरे दिन के लास्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दूंगा। सो हियर वी कंक्लूड द फर्स्ट टॉपिक, पर्सनल मास्टरी। थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर टू कुलदीप सर।